Hello students, my name is Ken Sarana. This is your physics class. This is the lecture for the 10th class and today we are going to start a very beautiful and a fresh topic which is called electricity. In this topic, in this chapter, for today's lecture, we will cover these main four topics. And if we will get some spare time, we will also cover one more topic which is called Ohm's law, but that will be further. Chal. So first of all, we will have the first topic which is called charge, second current, third, this is the topic, very beautiful topic, and in this one numerical will also come. This topic is called quantization of charge. Number 4, potential and potential difference. Okay, ji. So in the first topic charge, what we have to do, symbol, its types. Second topic current. In the topic current, we have to do the definition, its formula and its SI unit. Number 3, quantization of charge. One formula, one numerical. In the potential and the potential difference, we will do its definition. After that, we have one formula and after that, one numerical also. Okay? So let's get started. So please, this is the request to all you students to please take out your notebook and a pen and start making your notes, because if you will make your notes by yourself, it will make you more efficient. Okay? It will make you more efficient and you will understand the concept very beautifully and properly. So first topic of this chapter, that is called charge. Okay? Before moving into the first topic, let me ask you one question. The chapter name is electricity. What do you mean by the electricity? If you will talk about the electricity, you will think about the one word that is called bijli. So electricity, it is made up of the two words. One is city and first is the electric. And when you will think about the electric, जब आप सोचते हो कि इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक का मतलब कोई ना कोई चार्ज होगा, ठीक है जी, और सिटी मतलब दैट प्लेस. ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ कि दैट प्लेस, वो वाली जगह जहां पे हम किसकी बात करेंगे जी, चार्ज की बात करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टॉपिक, मेक द हेडिंग ऑफ द फर्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड चार्ज. तो चार्ज क्या हुआ जी, आपको पता है ये कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. वन इज पॉजिटिव चार्ज, लेट मी राइट डाउन हियर, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज. Okay ji, one is positive charge, other is negative charge. In the lower classes you have studied about positive and positive repel each other, negative and negative repel each other, positive and negative attract each other. Means if there are some type of charges, so they will have a force of attraction or the force of repulsion. Force of attraction or the force of repulsion depending upon their nature. कि जो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्जेस है या लाइक चार्जेस है, सो दे विल रिपेल ईच अदर. ठीक है जी. इफ द अनलाइक चार्जेस आर देयर, ऑपोजिट चार्जेस आर देयर, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ये तो आपने पढ़ा हुआ पहले भी. ठीक है जी. सो चार्ज का जो सिंबल हमने यूज करना है, दैट इज क्यू. द सिंबल फॉर द चार्ज इज क्यू. क्यू कैन बी कैपिटल, क्यू कैन बी स्मॉल, डजंट मैटर, बट जो न्यूमेरिकल्स के लिए, फॉर्मूला के लिए वी हैव टू यूज द सिंबल फॉर द चार्ज, दैट इज क्यू. ठीक है. अगर अपन सिंपल डेफिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करें तो व्हाट इज चार्ज, ये तो पता है कि लाइक चार्ज रिपेल है जी, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट है. इफ यू विल मेक द डेफिनेशन ऑफ द चार्ज, सो इट विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस, कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ मैटर. ठीक है, ड्यू टू विच इट विल अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्जेस. ठीक है जी. सो लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन हियर. So you also have to write down the definition or your notebook also. So charge क्या है जी? It is a property of a substance
due to which it will attract or repel other charges. ठीक है, अदर चार्जेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट और रिपेल. सो प्लीज राइट डाउन दिस डेफिनेशन ऑन योर नोटबुक. ओके जी, सो लेट्स डाइव इनटू द फर्दर टॉपिक. अच्छा, बिफोर द फर्दर टॉपिक एक चीज रहेगी, इट्स यूनिट्स कि व्हाट आर द एसआई यूनिट फॉर द चार्ज. सो आप लिख लो द एसआई यूनिट, द SI units for the charge is Coulomb. Coulomb was actually the name of the scientist, and on the name of the scientist, its SI unit are there, which is called Coulomb, and they're represented by the symbol C. Okay, so please write down. You have to write down these on your notebook. समझना क्या, लर्न क्या कर रहा है आपने. फर्स्ट टॉपिक चार्ज. चार्ज का जो सिंबल आपने यूज करना दैट इज क्यू. चार्ज के जो एसआई यूनिट है दीज आर द कूलम. पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दे आर द टू टाइप्स. लाइक चार्जेस दे विल रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ओनली दीज थिंग्स you have to remember, you have to learn. Okay, so let me erase this. Okay, so after that, write down the next topic, which is called current. Next topic is current. ठीक है जी, करंट सुना होगा आपने. ठीक है, करंट का मतलब क्या होगा जी. एक अपन सपोज आपने अपने के पास एक वायर है. ठीक है, अपने पास अगर एक वायर है तो इट इज मेड अप ऑफ द मटेरियल है तो एटम है तो उसमें चार्ज पार्टिकल तो होंगे ही, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ. ठीक है जी. अब अगर अपने पास से सिंपल एक वायर है, वी हैव जस्ट अ वायर विदाउट एनी बैटरी, करंट फ्लो करेगा उसमें, द आंसर इज नो. ठीक है, तो करंट फ्लो कैसे करता है, एक्चुअली फ्लो क्या करता है, फ्लो करते हैं जी चार्ज पार्टिकल्स. अगर अपने पास एक वायर है, लेट मी मेक अ वायर, दिस वन. वायर की जो शेप होती है इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, तो मैंने बड़ी सारी जूम करके वायर बना दी. ठीक है, तो उसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं जी नेगेटिव वाले, है ना. तो नेगेटिव वाले जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो देन वी विल से कि चार्जेस आर फ्लोइंग, एंड विद द फ्लो ऑफ चार्ज इट विल मेक अ क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड करंट. ठीक है जी. सो डेफिनेशन क्या बनी जी करंट की, कि इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज. इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज. इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. ठीक है जी, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. दिस इज द डेफिनेशन फॉर द करंट. ठीक है जी, अगर चार्ज फ्लो करेगा देन वी विल से देयर इज अ करंट इन एनी कंडक्टर और एनी वायर. ठीक है जी, दिस इज द डेफिनेशन, एंड फ्रॉम द डेफिनेशन वी विल मेक द फॉर्मूला. ठीक है जी. सो द करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब हो गया जी चार्ज डिवाइड बाय टाइम. ठीक है जी. जो सिंबल आपने लर्न करना है, the symbol for the current basically, so this is the I. current का symbol क्या होगा, I. you have to learn, you have to remember the symbol, this is I. ठीक है. after that current का symbol हो गया जी I, चार्ज का Q, टाइम क्या क्या होता है T. so you will get a formula for the current, which is I is equal to Q by T. You have to learn the formula. ठीक है जी, you have to learn the formula. definition इस formula के साथ ही बन जाएगी कि करंट क्या है जी, चार्ज पर यूनिट टाइम. चार्ज रुका तो होगा नहीं, चार्ज क्या करेगा जी, फ्लो करेगा. सो इट विल चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. ठीक है जी, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द करंट. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू डाइव इनटू इट्स SI यूनिट्स. ठीक है जी, क्योंकि जो भी क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं उसका यहाँ तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला और अ यूनिट ऑल्सो. ठीक है, उसके यूनिट्स भी होते हैं. ठीक है जी, तो यूनिट क्या हो गया जी इसके, आपने सुना होगा इसके बारे में. दिस इज कॉल्ड
एम्पियर, जो बैटरी वगैरह खरीदने जाते हैं तो इसके बारे में बात होती है जी, कितने एम्पियर की बैटरी है, ठीक है जी। सो करंट के जो एसआई यूनिट है, दीज आर द एम्पियर, इसको क्या बोल रहा है जी, एम्पियर, दिस इज द सिंबल ए, ठीक है जी। और आफ्टर दैट क्वेश्चन क्या आता है इसमें, पहले अपन सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द करंट, डिफाइन करंट। अगर करंट को डिफाइन करना है तो करंट को डिफाइन कैसे करेंगे जी, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है जी, समझ आ गया। आफ्टर दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द करंट, I is equal to Q by T, ओके। आफ्टर दैट व्हाट आर द SI यूनिट ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड एम्पियर, ओके जी, समझ आ गया इसे। आफ्टर दैट सीबीएसई वाले क्या है जी, वो एक स्टेप फर्दर सोचते हैं, कैसे सोचते हैं वो ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट आर द SI यूनिट ऑफ द करंट, वो ये पूछेंगे डिफाइन SI यूनिट ऑफ करंट, ठीक है जी, क्या डिफाइन SI यूनिट ऑफ करंट। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है, डिफाइन द SI यूनिट ऑफ करंट, ठीक है जी, या डिफाइन 1 एम्पियर लिखा होगा, ठीक है जी। सो देखो हाउ टू डिफाइन 1 एम्पियर, दिस इज योर क्वेश्चन, द डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये ऐसे लिखा हो कि डिफाइन द SI यूनिट ऑफ करंट, इट मींस वी हैव टू डिफाइन व्हाट अबाउट 1 एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट क्या है जी, एम्पियर, एम्पियर को डिफाइन करेंगे, कितने एम्पियर को, 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। सो 1 एम्पियर को डिफाइन करना बहुत इजी है, वी हैव टू डिफाइन फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओनली। तो देखो जी, करंट के SI यूनिट क्या हो गए, एम्पियर, ओके। चार्ज के SI यूनिट क्या हो गया जी, कूलम, पढ़ा अभी पढ़ा बस, ठीक है, कूलम। टाइम के SI यूनिट क्या हो गया जी, सेकेंड, ठीक है। सो देखो चार्ज के क्या हो गए, कूलम, टाइम के क्या हो गए जी, सेकेंड। तो मैं इसके आगे 1 1 1 लगा देता हूँ, आई एम पुटिंग द 1 1 1 हियर, ओके। सो आराम से देखो, जो जिसका SI यूनिट है उसको वैसे ही बोलना है, आराम से देखो जी। 1 एम्पियर इज द क्या है ये, 1 एम्पियर इज द करंट, ओके। व्हेन 1 एम्पियर करंट कब होगा करंट, जब चार्ज फ्लो करेगा। कितना चार्ज फ्लो करेगा जी, 1 कूलम। 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट, कितने टाइम में, इन 1 second. So you will write down the definition of 1 ampere here. 1 ampere is the current when, कब होगा, when 1 coulomb of charge flows in 1 second, किसमें फ्लो करेगा, किसी सर्किट में, किसी कंडक्टर में। सो द 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर, या सर्किट भी लिख सकते हैं, कंडक्टर वर्ड, सर्किट वर्ड, कोई बात नहीं, ठीक है जी, ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। सो प्लीज राइट डाउन दिस डेफिनेशन ऑन योर नोटबुक, ठीक है। वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है जी, हाँ। सो रेस कर दूं, डन, चलो ठीक है जी। करंट के बारे में समझ आ गया, चार्ज के बारे में समझ आ गया, ठीक है जी। अब इन दोनों को रिलेट करते हैं, थोड़ा सा एक नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं, ठीक है। सो लो जी, थर्ड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है जी, हेडिंग लगाइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। बिफोर डाइविंग इनटू दिस टॉपिक, पहले अपन लिख लेते हैं कि अपन ने पढ़ा क्या क्या समझा है अभी तक। सबसे पहले तो पढ़ा जी अपन ने चार्ज के बारे में, चार्ज के सिंबल क्या है, क्यों, और इसका SI यूनिट क्या है जी, कूलम, ये पढ़ा हुआ है। चार्ज के सिंबल इज क्यों, उसके SI यूनिट कूलम। नंबर 2 करंट का सिंबल I, इसके SI यूनिट एम्पियर। After that we have done one formula, I is equal to Q by T, the formula for the current, I is equal to Q by T, the flow of charge per unit 9, ठीक है जी। अब एक सिंपल क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन, इट इज द पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल जी एटम के अंदर होता है, इट इज मूविंग अराउंड अ न्यूक्लियस, ये आपको पता है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज
ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर द वैल्यू ऑफ चार्ज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कितना चार्ज होता है, इतना तो आपको पता है कि थोड़ा सा चार्ज होगा, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल पार्टिकल, उसके ऊपर जो चार्ज है इट इज वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लेस, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा जी, देखते हैं। इसकी वैल्यू आपको लर्न करनी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 और चार्ज के ऐसा यूनिट अभी अभी याद करें कूलम, तो इसके पीछे लगा देंगे जी सी। दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका जो सिंबल यूज करेंगे दैट इज E, small e. The charge on one electron is 1.6 into 10⁻⁻⁻19 कूलम। यही वैल्यू याद करनी है आपने, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, सेम, बट दैट विल बी इन पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज होता है बट दैट विल बी इन नेगेटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना, 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है जी। डन है जी, ये तो डन। आफ्टर दैट third topic, that is a quantization of charge. When you will listen about this topic, quantization, जब ये आप वर्ड सुनते हैं quantization, इसका फर्स्ट मीनिंग क्या आता है आपके दिमाग में? तो क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया क्वांटिटी, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन का आंसर देना है। इफ आई हैव द वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है जी, तो मेरे पास कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज विद मी? तो आंसर आएगा ये इतना, 1.6 10⁻⁻⁻19, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन है, देयर आर द टू इलेक्ट्रॉन, आई हैव द टू इलेक्ट्रॉन्स, सो कितना चार्ज होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके, 2 के साथ। 3 इलेक्ट्रॉन है जी मेरे पास, तो आई हैव हाउ मेनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज विद मी, 3 into 1.6 10⁻⁻⁹, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस नंबर के साथ, ठीक है। मतलब इफ आई हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस, किसी की चीज के ऊपर अपन ने चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो क्या करो, उसके टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने जी, इलेक्ट्रॉन्स की गिनती निकाल लो। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई दैट नंबर with this 1.6 10⁻⁻⁹, you will get the total value of charge, ठीक है। पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं, आफ्टर दैट वी विल डिफाइन दिस स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे जी, बहुत अच्छे तरीके से अपन स्टेटमेंट बनाएंगे जी इसकी, ठीक है। सो क्यों क्या है जी, चार्ज, ठीक है। सो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, वी हैव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, 2 3 4 5 जितने भी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई दैट विद E, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यों क्या हो गया जी, दिस इज द टोटल चार्ज, किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी मैटर, एनी सब्सटेंस कैरिंग द टोटल चार्ज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, ओके। N, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का कितना नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 25 है, 5000 है, 10 लाख है, 10 करोड़ है, कितना भी नंबर हो जाए, तो मल्टीप्लाई दैट विद E। तो E क्या है जी, दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। डन है जी, ये चीज समझ आ गई, ओके। सो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है, आ गया। नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल बी ऑलवेज इंटीजर, दैट विल बी ऑलवेज इंटीजर। लेट मी गिव यू एन सिंपल एग्जांपल कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन है, then we will say कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स, we will not saying कि 3.5 इलेक्ट्रॉन है जी, 3.75 इलेक्ट्रॉन्स है जी, 3.25, 3.5, 1.5, 2.5, ये वाला नहीं, ये हमारी समझ में नहीं आता, ठीक है। मतलब दैट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी इंटीजर, 1 2 3 4 10 20 जितना मर्जी हो जाए, करोड़ हो जाए चाहे, बट दैट विल ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू, पॉइंट्स में ये कभी नहीं आएगी, ठीक है जी, ओके।
So from this formula you will create the statement. I will not tell you कि statement को learn कैसे करना है. I will tell you about how to create the statement, how to create the definition of the topic. हमने creator बनना है जी, रट्टा नहीं मारना. समझ गए? रट्टा नहीं मारना. We have to create the definition from this formula. इसके साथ क्या होगा जी, आपकी एनालिटिक थिंकिंग, क्रिएटिव स्किल्स वो काफी ज्यादा डेवलप होंगे. ओके, सो Q इज द टोटल चार्ज. सो डेफिनेशन क्रिएट करते हैं. टोटल, सॉरी माय मिस्टेक, जब भी अपन ने डेफिनेशन या स्टेटमेंट क्रिएट करनी किसी भी चीज की, किसी भी लॉ की, ठीक है, तो वी हैव टू स्टार्ट विद दीज लेटर्स. सुना भी होगा आपने. इट स्टेट्स दैट, ये हमेशा स्टार्टिंग इससे होती है. इट स्टेट्स दैट, उसके बाद द टोटल चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस इज, किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर टोटल चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है. इट स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस इज, टोटल चार्ज इज क्या है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अ इंटीजर. इज द, देखो ध्यान से, मैं एक नया वर्ड यूज करने जा रहा हूं जी, इंटेग्रल मल्टीपल. ध्यान से देखो. इट स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस इज, इंटीजर को कैसे लिखा अपन ने, इंटेग्रल मल्टीपल. ठीक है. इंटेग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन electron. This is the complete definition of the quantization of charge. Simple here, the total charge on any substance is equal to is integral, integer, integral multiple of the charge on one electron. So this was your statement of the quantization of charge. Please note down the statement and the formula. After that we will just do the numerical. ठीक है जी. ये वाली statement अपने notebook के ऊपर लिख लो. ठीक है. So this is the quantization of charge. Q is equal to N into E. This is the new formula which we have done. हाँ जी. Done. Written. वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो जी. ओके. इरेज कर देते हैं. रोज एक न्यूमेरिकल जो काफी बार पूछा गया, एनसीईआरटी में भी रखा गया इसीलिए. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या है जी, न्यूमेरिकल. देखो न्यूमेरिकल कुछ ऐसे पूछते हैं कि व्हाट आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. पहले स्टेटमेंट को आराम से रीड करो. देखो जी क्या पूछा है, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में पूछा है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए. ओके. कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब चार्ज. ठीक है. देखो द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन वन सिंगल इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10⁻⁻⁹. ठीक है. डाइजेस्ट हो रही है थोड़ी थोड़ी. मतलब ये जो वैल्यू है ऑन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा चार्ज है. ठीक है जी. कहता है मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे करूं, आई हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. कितने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे करूं कि मेरे पास जो टोटल चार्ज है, कितना चार्ज हो जाए जी, 1 कूलम. ठीक है. सो हाउ यू विल गेट द सोल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल. देखो so total charge I have 1 coulomb. I have to calculate the number of electrons, मतलब n. okay. अपन को इतना पता है कि what is the value of charge on 1 electron, that is 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम. इतना चार्ज होता है जी, इतना पता है. ठीक है. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इतना तो पता लग गया जी. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का न्यूमेरिकल है. ओके. सो हाउ यू विल कैलकुलेट, फॉर्मूला है जी Q इज इक्वल टू N into E. ठीक है. Q की वैल्यू 1 N वी हैव टू फाइंड आउट, N ही लिख लेते हैं, इनटू E की वैल्यू कितनी है जी, 1.6 into 10⁻⁻⁹
19, ये भी कूलम में, ये भी कूलम में, ठीक है। सो हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, ये सारा मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड। सो 1 कूलम डिवाइड बाय 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb is equal to n. You will have to just solve this and you will get the value of n only, ठीक है। तो कूलम के साथ कूलम मर गया। अब हाउ टू सॉल्व दिस, देखो जी 1.6 है, 1.6 का मैं पॉइंट हटा देता हूं, उसके ऊपर लिख लेते हैं जी 0, ओके। इसको काटा अपन ने 10 by 16, I will get 5 by 8 into 10 raised to power, नीचे है जी 10 raised to power minus 19, ठीक है, ऊपर जाके हो जाएगा 10 raised to power plus 19, ओके, ठीक है जी। इतना डाइजेस्ट हुआ, बस क्या करना है जी 5 by 18 को फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। हाउ टू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करेंगे अपन डिवाइड करके, यहां पे कर दो 5 डिवाइड बाय 8, आपके दिमाग में ये तो नहीं है जी 8 को अंदर 5 को बाहर, नहीं, द न्यूमरेटर उसके अंदर डिवाइड जब करता है, ठीक है, डिनोमिनेटर बाहर, ठीक है। तो पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगाई 0, 8 को डिवाइड करना है जी, कितना आएगा 648, आफ्टर दैट कितना आएगा 2, 0 लगाया जी, इसके बाद समझ आ रहा ना, यस, ओके। इसके बाद लगाया जी 2, 8 into 2 16, आफ्टर दैट 4, फिर लगाया जी 5, 0, 40, आंसर आ जाएगा 0.625 into 10 raised to power 19, ठीक है, 0.625 into 10 raised to power 19। यहाँ पे अपना आंसर लिख देता हूँ, n की वैल्यू 0.625 into 10 raised to power 19, ठीक है जी। अब एक ध्यान से देखो जी, बुक में या जो सोल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी में ये वाला आंसर नहीं लिखते, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक पॉइंट को फर्दर एक पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, तो इसमें एक 0 कम हो जाएगी, ठीक है। तो कितना आएगा जी आंसर 6.25 into 10 raised to power 18, this is the value of number of electrons, this is the value of n, so this is our answer। आंसर समझ आया, कैलकुलेशन समझ आई, कैलकुलेशन इज नॉट वेरी टफ, सिंपल ही है, बस 1.6 10 raised to power minus 19 को इधर ले आओ, डिवाइड बाय 1 पॉइंट्स लगाओ, आंसर आ गया जी, ठीक है। अब इसके बाद इसको बस सॉल्व करना था। अब इसके बाद ये वाली चीज देखो 6.25 10 raised to power 8 है। अब थोड़ा सा रिकॉल करो व्हेन वी आर मेकिंग द डेफिनेशन ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि आपने तो बोला था जी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो n होगा, दिस वैल्यू ऑफ n दैट शुड बी इंटीजर, वो तो इंटीजर आनी चाहिए थी, पॉइंट्स में तो आनी चाहिए थी, तो ये तो पॉइंट्स में दिख रही है थोड़ी थोड़ी 6.25, है ना। कईयों के दिमाग में ये डाउट आया होगा कि सर 6.25 ये तो पॉइंट्स में आ गया, आपने तो कैलकुलेशन कहीं पे गलत करी होगी। मेरे बच्चों इधर देखिए, 6.25 इसके साथ क्या लिखा है, इंटू 10 raised to power 18, 18 जीरो है इसके साथ, इसका मतलब कि 2 जीरो अगर मैं कट भी कर दूं तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा 6.25 इंटू 10 raised to power 16। भाई साहब ये इंटीजर वैल्यू ही है, ठीक है, समझ आया। सो प्लीज नोट इट डाउन, दिस न्यूमेरिकल, दिस वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लीजिए, डन है, ओके। अब इस न्यूमेरिकल के साथ अपन को याद क्या करना है, देखो फर्स्टली लेट मी रेज दिस, ये तो समझ आया, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आराम से जवाब देना, ठीक है, आराम से आंसर देना जी। अगर पूछा जाए व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसका आंसर है जी 1.6 10 raised to power minus 19। मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज आएगा, 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 2 के साथ, समझ आया, ठीक है। इसके बाद जितने भी कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये कट लगाएगा, ओके। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आई हैव 2 कूलम ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, आराम से सुनना क्वेश्चन को,
2 कूलम चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। 1 कूलम चार्ज ने फॉर द 1 कूलम चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? 6.25 10 raised to power 18 फॉर 1 कूलम चार्ज। ठीक है, अगर 2 कूलम चार्ज पूछ ले इतना मतलब वी हैव टू, इसका मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 2। ठीक है, आराम से देख लेना, इन दोनों क्वेश्चंस में, इन दोनों में फर्क है। ये वाला क्वेश्चन पूछेगा 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज, 3 पे कितना चार्ज, मतलब जब भी चार्ज पूछे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, समझ आ रहा थोड़ा थोड़ा। एन, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6.25 10 raised to power 18। ठीक है जी, डन है। 2 कूलम में कितना? मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 2। 3 कूलम में कितना? मल्टीप्लाई विद 3। ठीक है जी, I think this is sufficient, this is enough for today। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 4th टॉपिक सोचा तो था, बट ये वीडियो काफी फिर लंबी हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक दिस इज द मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, इस चैप्टर में अपन ने करा क्या है? ठीक है, इस चैप्टर में अभी तक अपन ने क्या करा है? फर्स्टली वी हैव डिफाइंड अबाउट द चार्ज, चार्ज का सिंबल क्यू, उसके ऐसा यूनिट कूलम। आफ्टर दैट वी हैव डन अबाउट द करंट, करंट के ऐसा यूनिट, सॉरी करंट के सिंबल आई, उसके ऐसा यूनिट एम्पियर। आफ्टर दैट वी हैव डन अबाउट द फॉर्मूला फॉर द करंट, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है, इसके ऊपर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कैसे आएगा देखो जी। इफ वी हैव द चार्ज क्यू, इफ वी हैव द चार्ज ऑफ 2 कूलम्स flows, sorry 2 नहीं, 10 coulomb of charge flows in the circuit in 2 seconds, what is the value of current? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। what is the value of current? तो इसका आंसर ऐसे आएगा जी Q by T। so Q by T का मतलब हो गया, आंसर हो गया जी 5 एम्पियर। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो जी ध्यान से, we have the 3 symbols here, I, Q and T। कोई भी 2 गिवन होंगे, थर्ड we have to calculate। ठीक है, टाइम गिवन होगा, कई बार करंट गिवन होगा, यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज, चार्ज गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, यू हैव टू कैलकुलेट द करंट। ठीक है, या आई और क्यू की वैल्यू गिवन होगी, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है जी, फ्रॉम दीज 3 सिंबल्स यू हैव गिवन ऑलवेज 2, और बाकी एक की वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है जी, दिस इज द करंट। आफ्टर दैट वी हैव डन अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Q is equal to N into E, Q is the total charge, N is the number of electron, E is the charge on 1 electron। ठीक है जी, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी? 1.6 10 raised to power -19, और 1 कूलम अगर चार्ज होगा तो N की वैल्यू कितनी आएगी? 6.25 10 raised to power 18। बस जी, this was sufficient, more than sufficient for today। बस प्लीज मेक योर नोट्स प्रॉपरली, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।